Good morning, all of you. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Myself, Don Singh. I am start new batch for GATE exam preparation. How can prepare the GATE exam? Today we will discuss about the syllabus of GATE exam. Basically, in the GATE exam, we have two portions. First one is in electrical engineering double E branch. Electrical engineering syllabus, and in electrical engineering syllabus there is a general aptitude. First is general aptitude, second engineering mathematics, and engineering mathematics के अंदर other portion also is there. Laplace transform, series transform, Fourier transform, jet transform, algebra, calculus, differential equation, all these things. And third one is main electrical engineering subject. How many is the electrical engineering subject? In the GATE syllabus, we have 9 electrical engineering subject, like a network circuit, second EMI, electrical measurement and measuring instruments. Third one control system. Fourth one power system. This is your control system, power system, and electrical machine. Electrical machine. उसके बाद आएगा आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद आएगा आपका एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. दिस इज योर नेटवर्क सर्किट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, and then power electronics and analog or digital electronics. These are the complete syllabus of GATE examinations. Then in this our class we will discuss about the, first of all we will discuss technical syllabus. Afterwards we will discuss about the non-technical syllabus. The first subject is our technical syllabus is network circuit. Basically the first subject is network circuit. नेटवर्क सर्किट क्या होता है? बेसिकली जो हमारा नेटवर्क जो सर्किट है उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक है टू पोर्ट नेटवर्क एंड डीसी नेटवर्क. बेसिकली नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क होता है जैसे जैसे हमारे पास किसी भी सर्किट के अंदर कुछ ब्रांचेस होंगी, कुछ नोड होंगे, तो जहां ब्रांचेस और नोड को मिला के जो सर्किट बनेगा उसे हम कहेंगे नेटवर्क सर्किट. तो ये हमारे पास जैसे सपोज करो एक रजिस्टिव ब्रांच है, इस अनदर रजिस्टिव ब्रांच है, और ये अनदर रजिस्टिव ब्रांच है, R1 R2 and R3. Here
दिस इज योर एक वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं हम यहाँ पर। दिस इज अनदर डीसी वोल्टेज सोर्स। R1, R2 और R3। इसके अंदर हमारे पास दो नोड है, एक नोड ये है और दूसरा नोड ये है। इसे हम बोलते हैं रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड होता है, रेफरेंस नोड वो नोड होता है जिसका कि पोटेंशियल ऑलवेज जीरो कंसीडर करते हैं। बेसिकली किसी भी सर्किट के अंदर हमारे पास जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं, तीन ब्रांचेस हैं, R1, R2 एंड R3, और दो नोड है। ब्रांचेस इज इक्वल टू 3 और नोड इक्वल टू 2। B इज रिप्रेजेंट फॉर ब्रांच और दिस इज N इज रिप्रेजेंट फॉर नोड। तो हमारे पास जो KVL इक्वेशंस आएंगी, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL इक्वेशंस जो आती हैं वो KVL equations by using the KVL equation equal to B minus N plus 1. This is a formula, basic formula for how can get the KVL equation. Before starting the topics, we will discuss the basic fundamental of network circuit. So this is your B is the branch, there is the three branches, minus 2 node and plus 1 is equal to 2. So in this circuit there is a 2 KVL equation. तो हमारा KVL इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? KVL इक्वेशन कैसे क्या होंगी? दो इसमें हमारे जो सर्किट गिवन है, इसमें हमारे पास 2 KVL इक्वेशंस गिवन हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर घुसने से पहले सबसे पहले हमें यह स्टडी करना जरूरी होता है कि हमारे पास जो किरचॉफ लॉ है वो किरचॉफ लॉ क्या होते हैं। बेसिक फंडामेंटल हमें पता होना चाहिए, जैसे ओम्स लॉ क्या होता है एंड किरचॉफ लॉ क्या होता है। बेसिकली ओम्स लॉ क्या होता है, इसमें मैं KVL अप्लाई करने से पहले कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं आपको। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इन एनी कंडक्टर, ये सपोज करो कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर ए और बी एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I. इन एनी कंडक्टर द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द voltage when all physical conditions should be constant. Physical condition should be constant. तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा किसी भी कंडक्टर के अंदर ओम्स लॉ कहता है कि when all physical conditions should be constant, so I is directly proportional to V. तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट आएगा रेजिस्टेंस I is equal to 1 upon R into V. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये आएगा V is equal to I R. दिस इज योर ओम्स लॉ फॉर्मूला। दिस इज योर ओम्स लॉ फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम ओम्स लॉ कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले इस ब्रांच में KVL अप्लाई करने से पहले वी विल गो टू द KCL, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, किसी भी नोड पे KVL ऑलवेज अप्लाई हुआ किसी भी क्लोज्ड मेश के अंदर। जो KCL होता है, KCL क्या होगा, KCL हमारा अप्लाई होता है किसी पर्टिकुलर नोड पे। जैसे कि हमारे पास ये सर्किट है, ये एक नोड है, ये आप सिंपलीफाई करके देखेंगे। इस नोड पे अगर मान लो एज्यूम कर लो कि हमारे पास ब्रांचेस नहीं है और सिर्फ मतलब एक नोड है, इसमें ये करंट है I1 और इसमें ये करंट है I2 और ये I3। तो इस पर्टिकुलर नोड पे हम KCL अप्लाई करते हैं
at node. At this node, all incoming current is equal to the all outgoing current. Yeah, algebraic sum of current at any node is equal to 0. It means I1 जो इस नोड पे आ रहा है उसे हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव साइन से, और जो इस नोड पर जा रहा है करंट की डायरेक्शन I नेगेटिव, मींस जो नोड की तरफ आ रहा है, मतलब टुवर्ड्स द नोड जो है, जो नोड की तरफ आ रहा है करंट, उसे तो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो नोड से दूर जा रहा है उसे हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। फिर अप्लाई करेंगे इस पर KCL, तो क्या होगा, एट पर्टिकुलर नोड, मान लो ये ए नोड है हमारे पास, एट नोड ए द इनकमिंग करंट I, ये हमारा नोड पे आ रहा है तो इसे हम लेंगे पॉजिटिव I1, और ये दोनों जा रही हैं, दैट इज माइनस का I2 और माइनस का I3 इज इक्वल टू 0. सो एट नोड I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. At any node, the all incoming current is equal to the all outgoing current. So इस particular node पे क्या होगा, ये I1 is equal to I2 plus I3 होगा. This is your KCL. Ohm's law हो गया, V is equal to IR, KCL हो गया, I1 is equal to I2 plus I3. अब हम क्या करेंगे, ब्रांच हमारा KVL निकल के आ गया, अब इसमें KVL अप्लाई करेंगे कि KVL कैसे फाइंड होगा. इसमें क्या है, ये एज्यूम कर लेंगे हम, दिस इज योर सर्किट नोड. ठीक है, किसी भी सर्किट में R1 R2 R3 जब हम KVL अप्लाई करते हैं उससे पहले एज्यूम करते हैं, सपोज करो ये हमारे पास बैटरी गिवन पोलैरिटी नहीं गिवन है, ये हमारे पास सिर्फ V1 गिवन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये V2 गिवन है. तो V1 क्या होगा, इसमें हम स्टार्ट करेंगे, किसी भी सर्किट के अंदर पहले हम करंट की डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं. माना कि पहले इस कंसीडर करेंगे लूप 1, मेश 1, और ये हो गया मेश 2. मेश 1 में क्या होता है, जो करंट की फ्लो करेगा वो होगा आपका I1. एज्यूम, पहले हम एज्यूम करेंगे इसमें, एज्यूम लूप 1 एंड 2. इन 1 में क्या होगा, करंट होगा आपका I1, और लूप 2 में क्या होगा, करंट होगा I2. तो इसमें होगा ये हमारा I2. जब हमारे पास ये I1 I2, इसे एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारे पास ब्रांच करंट जो है, ये जो ब्रांच है, आउटर ब्रांच जो है, इनमें ब्रांच क्या होगा. तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले सपोज करो इसकी डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग है, तो इसे एज्यूम करेंगे ये आपके पास I1 होता है. ठीक है, इसका जो I2 करंट होगा, ये होगा आपके पास I2 करंट होगा इसमें, और उसके बाद जो हमारे पास ये मिडिल ब्रांच है, इसमें ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये होगा I1 और ये होगा I2. अगर हम इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन लेंगे, लूप 1 के अकॉर्डिंग डायरेक्शन लेंगे, तो हम लेंगे I1 माइनस I2, और अगर लूप 2 के अकॉर्डिंग डायरेक्शन लेंगे तो इसमें हम लेंगे I2 माइनस I1. तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इसमें ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंग, पहले में लूप के अकॉर्डिंग डायरेक्शन रहेगी इसकी नीचे की तरफ, और करंट हमारा I1 माइनस I2 हो जाएगा. तो हमारा इस नोड पे KCL
अप्लाई होना चाहिए। तो I1 आ रहा है तो I1 माइनस I2 जाएगा तो सर I2 बचेगा। ठीक है, अब ये फिर पोलरिटी डिसाइड करेंगे। जैसे V1 है तो जो बैटरी होती है, बैटरी की पोलरिटी ऑलवेज, छोटी प्लेट हम नेगेटिव लेंगे और बड़ी प्लेट को हम ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। दिस इज assumption in electrical engineering, you have to know about that। उसके बाद हम लूप 1 में या मैश 1 में KVL अप्लाई करते हैं। तो मैश 1 में KVL कैसे अप्लाई होगा? तो मैश 1 में KVL अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL। तो इक्वेशन कैसे मिलेगी हमें? माइनस V1 यहां से स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट मैश है, फर्स्ट मैश की फर्स्ट बैटरी के नेगेटिव साइन से। सपोज करो ये करंट यूं आ रहा है, यहां से जाएगा, जो यहां करंट जाएगा वो होगा हमारे पास, उसकी पोलरिटी पहले आएगी ऑलवेज, जो भी होगी, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। तो इसकी जो पोलरिटी है वो हमारी नेगेटिव आएगी, माइनस का जो एक पोटेंशियल है वो आ जाएगा V1। बेसिकली केवीएल होता क्या है? केवीएल हमारा होता है द वोल्टेज ड्रॉप एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 इन ए क्लोज्ड मैश। तो हमारे पास यहाँ बैटरी है, V1 आएगा, जितने भी एलिमेंट हैं उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा। सपोज करो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्या होगा आपका ये वाला करंट I1 इंटू R1। ऐसे यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा हमारे पास I1 माइनस का I2 इंटू का ये R3 रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही इसमें होगा हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप R2 इंटू I2। तो बेसिकली हमारे पास ये वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है? मैश 1 जब हम अप्लाई करेंगे KVL, तो ये वोल्टेज ड्रॉप प्लस ये वोल्टेज ड्रॉप प्लस ये वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। तो माइनस का V1 प्लस जहां रेजिस्टेंस होगा उसको प्लस साइन लेंगे I1, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस के अंदर हमेशा प्लस से माइनस फ्लो करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसे शो नहीं कर रहे हैं, सब में प्लस माइनस ही होगा रेजिस्टेंस में। सब चाहो तो शो भी कर सकते हो इसे प्लस। ठीक है, ऐसे ही नीचे आएगा, इसकी डायरेक्शन सेम है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, प्लस I1 माइनस I2 करंट इंटू R3 और प्लस, और उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ कोई मैश नहीं है। अब हमारे पास ये जो मैश 1 है, इसमें ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल, इन तीनों का अगर हम अलजेब्रिक सम कर देंगे तो हमें एक KVL इक्वेशन मिल जाएगी। ये हमारे पास हमने अप्लाई कर दिया कि हाउ कैन गेट द KVL इक्वेशन। देन हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये एक KVL इक्वेशन मैश 1 में आ जाएगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। माइनस का V1 प्लस का I1 R1 प्लस का हो जाएगा I1 R3 माइनस का I2 R3। ठीक है, अब ये इसे उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पर, क्योंकि दिस ऑल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 होगा। V1 इज इक्वल टू I1 कॉमन R1 प्लस R3, और उसके बाद ये हो जाएगा बस माइनस का I2 R3। दिस इज योर फर्स्ट KVL इक्वेशन फॉर लूप 1 मैश 1 के अंदर। अब सेकंड KVL इक्वेशन हमें निकालनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैश 2, अब हमारे पास ये मैश 2 है, अब मैश 2 में हम सेकंड KVL इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज करो हमारे पास ये करंट आ रहा है और इसकी जो पोलरिटी से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए, हम पोलरिटी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट पोलरिटी, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, इसको लेंगे। इसमें जो करंट एंटर कर रहा है ये प्लस का साइन है, तो प्लस V2, और उसके बाद यहां से आएंगे तो ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या आएगा, साइन आएगा नेगेटिव।
क्योंकि ये जो करंट है इसका अपोज कर रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा उसकी वजह से, और करंट आएगी I1 माइनस I2 इंटू R3। ये पोटेंशियल ड्रॉप प्लस ये पोटेंशियल ड्रॉप प्लस ये पोटेंशियल ड्रॉप। अब यहाँ आएंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम एज इट इज रहेगा, यू करंट यू आ रहा है और यू इसमें से जा रहा है तो प्लस का ये सिंबल आएगा प्लस, और ये करंट होगा I2 into R2 is equal to 0. This is your complete KVL equation, second equation। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से हमें सेकंड KVL इक्वेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली सेकंड KVL इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। जैसे कि हमने ये बैटरी है हमारे पास, यहाँ से हम एंटर करेगा हमारा करंट, तो इसके जो फर्स्ट सिंबल होगा उसे हम नोट डाउन करेंगे प्लस V2, देन माइनस का I1 माइनस I2। दिस अपोज कर रहा है कि ये जो करंट आ रहा है ये टॉप टू बॉटम आ रहा है और ये बॉटम टू टॉप जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये I1 माइनस I2 इंटू R3 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब वापस इन फॉर्म ऑफ V2 लिखेंगे, तो V2 इज इक्वल टू जो हो जाएगा तो हो जाएगा I1 R3 माइनस का I2 R3 और ये हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा I2 R2, तो ये हो जाएगा I1 R3 माइनस I2 को मिलेगा तो जाएगा R2 प्लस R second equation. This is your KVL second equation। V2 is equal to I1 into R3 minus I2 into R2 plus R3। इसे this is your simplified method of how can we solve the KVL equation in mesh analysis। Basically we will discuss about the Ohm's law and Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law। This is your basic fundamental of electrical engineering। So today we will stop, next class we will discuss later। Thank you।